give a brief introduction of our initiative Super and Mass, and then I'll introduce you and then we can start. Okay. So, good evening, everyone. I heartily welcome all the attendees and our special speaker, Dr. Nikita Rawal. She has especially devoted time for this session, and we once again welcome her. But first of all, I would like to introduce and say something about our Super and Mass education. It is especially an initiative for the underprivileged students because of COVID. As we all know that the students are suffering a lot. The privileged ones are getting online classes and all those stuff. But what about the underprivileged one? The students who cannot, their schools are not providing proper online classes and all those stuff. So we have come up with this initiative, and classes are being conducted for 10th and 12th students. And along with the regular maths, physics, chemistry, biology classes, we are also taking these sessions for the personality development, for depression, for their morale boost up. And today we have this session for the women health. And we have lot many educators involved along with us who are continuously devoting their services for the students. So today we would like to thank them a lot. And today we have an eminent speaker along with us, ma'am, Dr. Nikita Rawal, ma'am. She has come up for this initiative because we generally, if we talk about the females, we ignore our health considering the day-to-day lives, the responsibilities we are taking care of. We mostly neglect or ignore our health issues. And it is highly required that the women should be fit and fine so as to take care of the remaining family members and all those stuff, to carry out the responsibilities properly. So for that, Nikita ma'am is going to explain like how we can take care of ourselves, what all things we should not be ignored, what all things we should take care of, and all those stuff. But I would like to say something about Dr. Nikita ma'am. Like she is a founder and director of Rawal Fertility and Women's Healthcare Center. She is also a founding director of an NGO, Ishan Foundation. She is working for child and maternal health. She is a consultant obstetrician and gynecologist in Vishesh Jupiter Hospital. Then she has been trained and worked in UK for 14 years. She is an ex-consultant Care Fertility Manchester, and she did a fellowship in reproductive medicine and surgery from University of Hull. She has various publications in international journals. 15 publications have already been done, and she has done represented various national and international conferences as well. She is a trainer for RCOG courses and MRCOG courses as well. So once again, we welcome you, ma'am. Without taking much time, I would like you to please carry on the session. Okay. We all are eagerly waiting to hear from you. So over to you, ma'am. Good evening, everybody, and thanks for the kind introduction. And first of all, I want to thank the group Super and Mass Education. You are doing a wonderful job. देखिए बड़े बड़े schools की तो सबकी coaching चल रही है, but what about underprivileged? So it's really nice that your group has taken this task to educate underprivileged women, children. और दूसरे भी आपके lectures हो रहे हैं अलग अलग topic पे. So that is a very good initiative. So today, thanks for inviting me to talk on women's health. So I'll just take 2 minutes to share my slides. And I would request you all to please mute your speakers so that there's no disturbance in between. So just give me two minutes. Help kar do.
Hello, can you please, can you see my slides? Yes, ma'am. Slides are visible. Okay, but first slide, just 1 minute. Sure, sure. Okay, is Yeah, the slide it is. visible? Okay. Yeah, clearly visible. Okay, Yes. okay, fine. So we'll start. So COVID time has been a very difficult time for all of us, but it has taught us many good things as well. सबसे important है कि हमने अपनी health के बारे में समझना या उसको ज़्यादा seriously लेना चालू किया है. हमें समझ में आया है कि जान है तो जहान है ना. पहले अपन सिर्फ दिन भर भागते रहते थे काम के लिए, टू अर्न मनी एवरीथिंग, बट कोविड टाइम में अपने को समझ में आया कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखें. और जैसा कि आपने पहले कहा है कि लेडीज बहुत इग्नोर करती हैं अपनी हेल्थ को. आप किसी भी फैमिली में देखें, भले ही वो लोअर मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास, द टिपिकल पिक्चर इज कि पहले लेडीज सबको खाना खिलाती हैं और फिर एंड में खाती हैं, या जो और पुअर क्लास हैं जो भी बचा कुचा खाना जो रहता है घर में वो फिर वो खाती हैं, और सारा अच्छा अच्छा खाना जो रहता है वो आदमियों को खिलाती हैं. वेल, मैं तो सोचती हूँ कि इसका उल्टा होना चाहिए, लेडीज को पहले खाना चाहिए, क्योंकि अगर लेडीज वीक हों तो वो माल नरिश मदर्स रहती हैं, उनके बच्चे लो वेट होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, फिर वो जो लड़कियां या बड़े बच्चे होते हैं वो बीमार रहते हैं. तो ये एक पूरा विशिष्ट सर्कल चलता रहता है. तो मदर्स को हेल्दी होना बहुत जरूरी, इसलिए आज हम बात करेंगे मदर्स की हेल्थ पे, विमेन्स हेल्थ पे. इंडिया ऐसे तो बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, बट जो अपने स्टैटिस्टिक्स हैं अभी भी बताते हैं कि विमेन की हेल्थ बहुत पुअर है. अभी भी अपनी माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, एनीमिया बहुत ज़्यादा है, और ये सब इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज है कि लेडीज़ एजुकेटेड नहीं हैं, लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं. So this is all interrelated. Health is related to education, education related to your financial status. So अपने को आज बात करेंगे कि हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें. सो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज नॉट जस्ट स्टेट ऑफ कि हेल्थ, आपको बीमारी नहीं है इसलिए आप हेल्दी हो. दैट इज नॉट द मीनिंग. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, एंड इट्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज. और सोशल वेलबींग के साथ साथ आजकल स्पिरिचुअल वेलबींग भी आ गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. So health के क्या क्या components हैं? First is your physical health, which depends upon what you eat, your nutrition, your exercise. आपकी mental health, आपकी emotional health, और आपकी spiritual health. सो अपन न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की तो बात करेंगे, साथ में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है. औरतें बहुत काम करती रहती है, रात को ठीक से सो नहीं पाती है, नींद पूरी नहीं होती, और नींद में ही आपकी बॉडी की रिपेरेटिव प्रोसेस होती है. इसलिए प्रॉपर 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है. और ज़रूरी है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, हर चीज़ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड हो. बहुत सी महिलाएं रहती, दिन भर नेगेटिविटी रहती है उनमें, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसकी बुराई उसकी बुराई. तो दैट एटीट्यूड इज नॉट राइट. अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना. अभी मुझे कहा गया था कि ये यूजुअली स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है, तो आजकल स्पेशली यंगर जनरेशन को यही सब चीज़ें खाना जरूर अच्छा लगता है, बाहर के समोसे, कचौरी, पिज़्ज़ा, बट वी ऑल नो दैट दिस इज नॉट अ हेल्दी डाइट. और अभी कोविड टाइम में, लॉकडाउन टाइम में ये सारी चीज़ें बंद थी, तो वो बहुत अच्छा हुआ. तब हमें समझ में आया कि इम्पोर्टेंस हेल्थ का क्या है, अपने लिए क्या ज़रूरी है. मिल्क ज़रूरी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो टिपिकल बोलते हैं एक इंडियन थाली जो रहती है वो एक कंप्लीट फूड रहता है, उसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन सब रहता है. तो मुझसे औरतें बहुत पूछती कि आप हमको डाइट चार्ट बना के दो. अब कोई डाइट चार्ट एज सच बनाने की जरूरत नहीं. अगर आप प्रॉपर जो एक इंडियन थाली में जो खाना रहता है आप टाइम से खाते हो, आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते हो, तो डेट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट डाइट फॉर योर सेल्फ. सो अभी हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. 60% ऑफ बीमारियां होती हैं अगर आपकी डाइट ठीक नहीं हो, और अगर आप डाइट ठीक करते हो तो आप हेल्दी रहेंगे. ओबेसिटी एक बहुत बड़ी मॉडर्न एज की प्रॉब्लम हो रही है, और मैं बहुत सी लड़कियों को भी देखती हूँ, स्पेशली टीनेजर गर्ल्स, जो बहुत मोटी होती जा रही हैं, है ना, बिकॉज अपना
फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, डाइटरी हैबिट्स अपनी चेंज हो गई है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया है। तो ओबेसिटी आई थिंक इज द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज। और चाइल्डहुड ओबेसिटी तो और भी खराब रहती है। कभी कभी मैं देखती हूँ फैमिलीज में मदर्स लेके आती हैं कि डॉटर का वेट बहुत बढ़ रहा है, और देखो तो मदर का भी बहुत वेट रहता है। तो द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम विद द फैमिली फूड एंड एक्सरसाइज, है ना। पूरी फैमिली की ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं रहती है। तो मैं पहले मदर्स को एजुकेट करती हूँ कि अगर मदर राइट एजुकेशन देगी बच्चों को कि क्या खाना है, मदर्स एक्सरसाइज करेंगी बच्चों के साथ में, तो पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। ओबेसिटी से प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी डायबिटीज, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक नहीं रहती, मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ना, स्लीप एपनिया, साइकोलॉजिकल गर्ल्स में बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसके कारण उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओबेसिटी नहीं हो, स्पेशली गर्ल्स। सो व्हाट आई से इज ईट स्मार्ट। बहुत सी बार क्या करते हैं बच्चे भी या स्कूल गर्ल्स, दिन भर नहीं खाते हैं और फिर शाम को कुछ भी समोसे कचौरी खा लेते हैं। या लेडीज क्या करती है कि हमारा तो उपवास है, दिन भर नहीं खाएंगे और रात को बहुत सारी तेल वाली साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे। सो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू, दैट इज नॉट फास्टिंग। सो डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ, आप टाइम पे खाना खाएं। दूसरा है कि क्रैश डाइट्स का बहुत फैशन है कि अभी हम ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो डाइट 3-4 महीने एक डाइट फॉलो करते हैं, फिर उसको छोड़ के दूसरी। सो दैट शुड नॉट बी द वे, है ना। आप प्रॉपरली खाइए, टाइम से खाइए, ब्रेकफास्ट लीजिए और मील्स रेगुलर इंटरवल पे खाइए। दूसरा है एक्सरसाइज, जिसको हम पूरा तरह से भूल जाते हैं। बहुत सी लेडीज आती है क्लिनिक में, मैं पूछती हूँ क्या करते हो, बोले दिन भर घर का काम करते हैं। दैट इज वेरी गुड कि आप घर का काम करते हैं। बहुत सी औरतें घर का भी काम नहीं करती, उनके यहाँ 3-3 4-4 सर्वेंट्स रहते हैं। तो घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, झाड़ू पोछा अगर आप खुद करते तो दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज इन इटसेल्फ। पर थोड़ा टाइम आपको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज लाइक योगा करें आप, जिसमें आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो, टोनिंग हो, या वॉक्स पे जाएं, साइकिलिंग करें। तो घर के काम से हट के थोड़ा 1 घंटा आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, लेडीज अबो 50 आती है कि हम कैल्शियम टेबलेट खाएंगे तो हमारी बॉडी बोन हेल्थ ठीक रहेगी। उससे कुछ नहीं होगा। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करें, तो आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। तो जरूरी है फिजिकल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो हाइपरटेंशन का चांसेस कम रहता है, आपकी लंग्स अच्छी रहती है, आपको जो दिन भर इधर दर्द हो रहा है उधर दर्द हो रहा है उसके इंसिडेंसेस कम होते हैं, क्योंकि आपकी मसल स्ट्रांग रहती है, आपकी बोन स्ट्रांग रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, थकेंगे, तो आपको नींद अच्छी आएगी। और बहुत से फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप में डिप्रेशन के, इरिटेबिलिटी के, उसके चांसेस कम रहेंगे। सो रेगुलर एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक ये मैंने पर्टिकुलर रखा है सेक्सुअल हेल्थ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर देती हूँ, जहाँ पे बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा मूवी से या इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि सेल्फ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या है। तो स्पेशली मदर्स की ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों से खुल के बातें करें सेक्सुअल हेल्थ पे, है ना। ये छुपाने की बात नहीं है, ये बल्कि ओपनली डिस्कस करने की बात है। अगर आप उनको नहीं समझाएंगे तो वो गलत सलत क्लिनिक्स पे जाएंगे, जहां उन्हें या तो राइट गाइडेंस नहीं मिलेगा या गलत दवाएं मिलेंगी, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। HIV अपने को सबको मालूम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, पर और भी बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ट्स। तो ये सारी चीज़ों का एजुकेशन या आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप अपने टीनेजर बच्चे या कॉलेज गोइंग बच्चों को समझा सकें। और अधिकतर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एक यंग ग्रुप में होती है, बिकॉज ऑफ देयर चेंज सेक्सुअल प्रैक्टिसेस दीज डेज। सिम्टम्स क्या होते हैं? लोअर एब्डोमिनल पेन, या आपके जेनाइटेलिया पे अल्सर्स होना, या वजाइनल या पीनियल डिस्चार्ज, इचिंग,
बर्निंग ऑन पासिंग यूरिन, है ना, गंदे तरह का वजाइना में से डिस्चार्ज होना, बाथरूम आने में प्रॉब्लम होना, ये सारे साइंस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के। तो अगर किसी को हैं तो जरूरी है कि डॉक्टर को टाइम पे देखें, है ना। एंड यूज प्रॉपर, यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन टू यूज प्रिकॉशन। आई सी लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आजकल मैं देखती हूँ क्लिनिक में, जो आज से 10 साल पहले था वो अब नहीं है। बहुत सी यंग गर्ल्स आती है टर्मिनेशन के लिए, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है, उनको किसी ने नहीं बताया कि कॉन्ट्रसेप्शन क्या है, उनकी मदर्स ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया। क्योंकि आजकल लड़कियों का बिहेवियर बदल रहा है, तो साथ में जरूरी है कि हम मदर्स भी अपना बिहेवियर चेंज करें बच्चों की तरफ, और उन्हें समझाएं कि सेल्फ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या हैं। अपने को समझाना जरूरी है दैट यू शुड बी गुड, बट इफ यू कांट बी गुड एटलीस्ट बी केयरफुल, है ना। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ मदर टू टीच हर सन एज वेल एज हर डॉटर। अब हम बात करते हैं जो कॉमन चीजें हैं यंग एज में या वेमेन को होती है। एनीमिया, 50% के करीब लेडीज एनीमिक रहती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। आजकल और देखते हैं विटामिन डी, विटामिन बी 12 की बहुत कमी रहती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा क्लिनिक हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, पीसीओडी, थायराइड प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम्स, और ये यंगर जनरेशन में भी ये सारी प्रॉब्लम्स काफी होने लग गई हैं आजकल। सो एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी होना। आइडियली आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 के करीब होना चाहिए, 11 से 12, और इससे कम हो तो उसको एनीमिया कहते हैं। क्योंकि लड़कियों की जब प्यूबर्टी आती है, उनके पीरियड्स चालू होते हैं, तो हर महीने उनके शरीर में से बहुत ब्लड लॉस होता है, और वो जैसे ही 8-9 स्टैंडर्ड क्लास में आती है वो एनीमिक होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है पर उनकी डाइट इंप्रूव नहीं होती है। तो जरूरी है, उनके सिम्टम्स क्या रहते हैं कि बहुत थकान, अधिकतर लड़कियां बोलती है बहुत थकान लगना, चिड़चिड़ापन रहना, मेरे बाल बहुत जड़ रहे, मेरे फेस पे शाइन नहीं है, नेल्स ब्रिटल होना, जरा सा चलते हैं तो हाफने लग जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सो दीज आर साइंस ऑफ एनीमिया। और हम स्कूल्स में रेगुलर सर्वे करते हैं और बहुत लड़कियां एनीमिक रहती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत इनिशिएटिव्स हैं कि हर स्कूल गोइंग लड़कियों को या प्रेग्नेंट वुमेन को हम आयरन सप्लीमेंट्स रेगुलरली देते हैं। सो ये एनीमिया के, सो एनीमिया सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, है ना। आप पालक खाएं, चुकंदर खाएं, गाजर खाएं, जो नॉनवेज खाते हैं वो रेड मीट खाएं, इन सब चीज़ों में आयरन रहता है। पिन, खजूर, डेट्स, मैं तो लड़कियों को बोलती हूँ एक मुट्ठी गुड़ चना रोज खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। गुड़ से मिलेगा आपको आयरन, और चने से मिलेगा प्रोटीन, जो बहुत एक ग्रोइंग एज के लिए जरूरी है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी। बहुत सी लेडीज आती है बिटवीन 30 to 50 ईयर की मसल वीकनेस हो रही है, हाथ पाँव में ऐसे जलन सी महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ना, सब जगह कमजोरी करना, और B12 लेवल कराते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन जिनकी डाइट है तो सबको B12 डिफिशियंसी आती है ना। तो उसके लिए अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और बाकी अगर बहुत लो तो हम B12 के सप्लीमेंट्स देते हैं। विटामिन डी इज द सनशाइन विटामिन। अगर आप धूप में बैठते हैं तो इसकी डिफिशियंसी कभी नहीं होगी। और विटामिन डी जरूरी रहता है आपकी बोन हेल्थ के लिए, है ना। सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट खाने से बोन्स स्ट्रांग नहीं होती है। बोन स्ट्रांग होती है धूप मिलने से, रेगुलर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने से। और अगर ये भी बहुत डिफिशियंट रहता है लेडीज में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत करती है लेडीज, और जब वो ब्रेस्ट फीड करती है तो उनकी बॉडी का लॉट ऑफ कैल्शियम गोज टू द बेबी, और लेडीज की बोन्स वीक रह जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि विटामिन डी, आप थोड़ा धूप में बैठे रोज, है ना, और सिर्फ अंदर कमरा बंद करके टीवी देखते रहते हैं, इसलिए अपने को धूप नहीं मिलती है। धूप में बैठना बहुत जरूरी है। धूप थोड़ी हो तो वॉक पे जाएं, आप बाहर गार्डन में बैठे, सो आपको विटामिन डी रेगुलरली मिलेगा। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि व्हाट इज राइट मेंस्ट्रुअल साइकिल। लड़कियों को अधिकतर 12 से 13 इयर्स में पीरियड्स चालू होते हैं, पर आजकल ये एज कम कम होती जा रही है। हम काफी सारी 10 या 11 साल की लड़कियों को भी देखते क्लिनिक में जिनके पीरियड्स चालू हो गए हैं। स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में और जल्दी पीरियड्स चालू हो रहे हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है 32 डेज की, पर दिस कैन वेरी फ्रॉम 21 डेज to 45 days.
नॉर्मल जो ब्लीडिंग रहती है 3 to 4 डेज रहती है, पर कभी कभी लोगों को 4 डेज से कम रहती है या 7 डेज से ज़्यादा रहती है। यूजुअली 2 to 3 पैड्स बदलते हैं, पर अगर लेडीज बोलती है कि नहीं हमें बहुत पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं या बहुत सारे क्लॉट्स जा रहे हैं या हमारी ब्लीडिंग ऐसी है जिससे हमारा काम में इंटरफियरेंस हो रहा है, व्हाट वी कॉल इज मिनोरेजिया। सो हैवी ब्लीडिंग अगर आपको बहुत हो रही है जिससे आपको वीकनेस लग रही है, या आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या 21-21 दिन से जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से मिलें। या जब आफ्टर 50 अगर आपके पीरियड्स कुछ महीनों के लिए बंद हो गए और फिर से ब्लीडिंग चालू होती है, वो भी नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है ना। तो मेंसेस को लेके बहुत सारे लेडीज के क्वेश्चन आते हैं, तो जरूरी है कि आप समझें कि नॉर्मल साइकिल क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा एबनॉर्मल क्या होता है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं चीज टच करना चाहूंगी, कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है, बट सबसे ज्यादा जो कैंसर डेथ अपनी कंट्रीज में होती वो होती सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स होता है बच्चादानी का मुंह, और उसके कैंसर से इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ होती है, और वर्ल्ड वाइड भी इंडिया में बहुत डेथ है कैंसर। पर अच्छी बात यह है कि इस कैंसर के लक्षण हम जल्दी पता कर सकते हैं एक छोटी सी जांच से। तो ये जांच क्या होती है, ये जो सर्विक्स है, ये आप पिक्चर में देखेंगे जो बच्चादानी का मुंह होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो अगर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये साइंस होते हैं कैंसर के, सर्वाइकल कैंसर के। ये सब इंसिडेंसेस हैं जो बताते हैं कि कितना हाई इंसिडेंस है। 8 women die every hour from this. So every 7 minutes a women die from cervical cancer in India. This is a very very high figure, a very alarming figure. So जरूरी है कि इसके लिए कुछ करा जाए। ये आप देखेंगे पिक्चर्स, ये एक तरफ नॉर्मल सर्विक्स है और एक तरफ ये सर्विक्स है जो नॉर्मल नहीं दिख रहा है। जब हम नीचे से जांच करते हैं तो अगर हमें सर्विक्स ऐसा दिखता है, मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, ये कैंसर का साइन है। ओके, अब आजकल ये इन्फेक्शन से भी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जो होता है एचपीवी वायरस, वो कॉज रहता है। रिस्क फैक्टर्स रहते हैं कि अगर आपकी जल्दी एज में सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो गई है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों, सो ये रीजंस हो सकते हैं। और ये 10 वार्निंग साइंस मैंने जो अभी बताए आपको, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, कंस्टेंट फटीग, पेन, वेट लॉस, ये सारे साइंस हैं सर्वाइकल कैंसर के, है ना। तो ये जरूरी है जानना अपने को कि अगर ये कुछ हो, सो कोई हार्म नहीं है कि अगर आप एक बार अपने आप को चेक करवा लें। पर इसकी स्क्रीनिंग होती है जिसको बोलते हैं पैप स्मीयर, जो हर लेडी को 3 साल में एक बार कराना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ ये बच्चादानी के मुंह से एक ब्रश से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और कोई दर्द नहीं होता है और कुछ घंटों में रिपोर्ट आ जाती है। इससे अगर आपको कैंसर डेवलप हो रहा हो तो ये हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर लेडी से 21 टू एटलीस्ट 50 ईयर्स के बीच में जो हैं, वो हर 3 साल में, अगर आपका पैप स्मीयर नहीं हुआ है तो आप कल ही जाके पैप स्मीयर कराएं, और हर 3 साल, ये सिर्फ 3 साल में आपको एक बार कराना है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जांच कराएं। और अच्छी बात है कि अब इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी आ गया है ना। कोविड के अगेंस्ट भी आ गया, और उसके पहले से है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन, जो कि हम लड़कियों को जो 11 साल की उम्र से ही दे सकते हैं। तो अगर आपकी स्कूल गोइंग डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो आप सब उनको, जैसे बीसीजी का टीका, डीपीटी का लगता है, अब उनको जरूरी है कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाएं। और ये जितनी जल्दी उम्र में लगवाएंगे, उनकी मैरिज से पहले लगवाएंगे, तो ये ज्यादा प्रोटेक्शन देता है सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट। इसलिए आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें इसके बारे में, और सब लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाएं। ये तो जनरल फिजिकल हेल्थ की बात हुई, पर आजकल मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहे हैं। कोविड टाइम्स में हम सब लोग घर के अंदर बंद थे, सोशल कांटेक्ट बंद हो गया था, उससे भी बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस बढ़ी है ना। तो अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे तो कभी भी फिजिकली हेल्दी नहीं रह पाएंगे।
और लेडीज को हम बहुत देखते हैं जो क्लिनिक में आती है, यहाँ दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, पर जब हम ज्यादा बात करते हैं तो पता चलता है कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है ना, इसलिए उनको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम यंगर जनरेशन की बात करें तो उनका तो पूरी दुनिया ही बदल गई है, वो पूरे टाइम मोबाइल या लैपटॉप में रहते हैं, उनका इसलिए साइबर क्राइम बहुत बढ़ गए हैं। आप पूरा न्यूज़पेपर इन चीज़ों से भरा रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे टच नहीं करूँगी। तो जरूरी है कि एक नॉर्मल फैमिली लाइफ, एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दूसरे से शेयर करना, वो बहुत ज़रूरी है। और यंगर एज में हम देख रहे हैं सोशल आइसोलेशन के कारण सब्सटेंस अब्यूज बढ़ रहा है, ड्रग्स बहुत बढ़ रही हैं। इंदौर में आपने देखा कितने सारे ड्रग रैकेट्स हुए हैं अभी, खुलेआम कॉलेज स्कूल्स के पास में ड्रग्स बिकती है। इसलिए लेडीज को जरूरी है कि अपन अपनी डॉटर्स को, अपने बेटों को बताएं कि ड्रग्स के क्या हार्म हैं और उनसे दूर रहें, है ना। अदरवाइज स्कूल के बच्चे और यंग कॉलेज गोइंग बच्चे बहुत जल्दी ये ट्रैप में आ जाते हैं, और जो एक बार ड्रग्स लेना चालू करता है तो बहुत मुश्किल होता है उनसे ड्रग्स की आदत छुड़ाना। तो बेस्ट है कि वो कभी उसके पास जाए नहीं, उसके लिए जरूरी है कि उनको आप फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट दें। सो ये ड्रग अब्यूज की बात हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन है जो अभी हमने रियलाइज किया, इज योर स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। आपकी आत्मा खुश रहेगी तो आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्थी रहेंगे। और इंडिया, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस दैट वी हैव सो मेनी स्पिरिचुअल लीडर्स, है ना। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो अब पूरी दुनिया को स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हैं। और आपने एक्सपीरियंस करा होगा, जो अपने घर में दादी नानी लोग हैं, वो हमेशा ठीक रहती हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, वो सुबह उठ के पूजा करती है, मेडिटेशन करती है, शांति से अपना काम करती रहती है। बट यंगर जनरेशन जो है वो दिन भर इरिटेबल रहता है, एक्साइटेड रहता है, नाराज जल्दी होता है। तो जरूरी है कि आप थोड़ा समय आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को दें, थोड़ा समय। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूजा करें, अगरबत्ती लगाएं, पर आप अपने अंदर जाने की कोशिश करें, आप शांति से बैठें, आप मेडिटेट करें, और आप रियलाइज करें आपके अंदर के पावर्स को। जब आपको वो रियलाइजेशन रहेगा तो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी रहेगी। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन इस प्रोवर्ब से, इस दोहे से खत्म करना चाहूंगी कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें और हेल्दी रहें। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन विद। और अब आप लोग को जो भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। So now ma'am is there for us. So please come ahead if anybody has any questions. Yeah, Sana Hassan. Yeah, you may please proceed. You want to know something from ma'am? I think you need to unmute her. I think most of them are on mute. No, they can unmute by themselves. Yes, sorry. One concern was there, ma'am, about that vaccine for cervix cancer. Is there any side effects for that? I haven't seen any so far. I've been giving it to lot of girls, है ना। लोगों को बहुत डर लगता है वैक्सीन को लेके। देखो BCG जब आया था, DPT आया था, बहुत कंसर्न थे, बट दिस वैक्सीन इज वेरी सेफ फॉर वेमेन। 3 डोजेज रहते हैं इसके। जैसे अगर आज एक डोज लगाए 0 डे, सेकेंड डोज इज आफ्टर 1 मंथ, एंड थर्ड डोज इज आफ्टर 6 मंथ्स। सो कोई साइड इफेक्ट्स एज सच नहीं है। Very rare, if they are extremely rare. I haven't seen one. Excuse me, ma'am. हाँ जी। Good evening. Ma'am, my age is 45 completed. Okay. And I got a fibroid on cervix. और उसका अभी cervix पे? Sorry? Yes. cervix पे fibroid? जी जी। और अभी 2 नवंबर में ही उसका सब किया है, मतलब जो प्रोसीजर है। तो क्या मैं लगा सकती हूँ अभी? मेरे लिए सेफ रहेगा? एक तो मुझे ये क्लियर नहीं है कि आपका क्या प्रोसीजर हुआ है सर्विक्स पे, है ना। कि फाइब्रॉइड्स यूजुअली यूट्रस में होते हैं, तो
तो आपके सर्विक्स पे क्या प्रॉब्लम थी वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आई, पर आप 45 की एज में भी लगवा सकते हैं वैक्सीन, और आप पैप स्मीयर भी करवा सकते हैं। पैप स्मेयर हो गया मैम, पैप स्मीयर असिम्टोमेटिक, यस ठीक है, that is असिम्टोमेटिक। okay। हाँ, और वैक्सीन जितनी जल्दी एज में अपन लगाएंगे, स्पेशली जब लड़कियों की सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो उससे पहले लगवाएंगे, तो वो ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। पर आप भी लगवा सकते हैं और आप रेगुलर पैप स्मीयर करवा सकते हैं। ये 2 बार हो चुका है मुझे, ये जो प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए, और उसका पैप स्मेयर हो चुका है। हाँ, मुझे आपकी प्रॉब्लम नॉन के बारे में मैलिग्नेंसी। नहीं पता है कि सर्विक्स पे क्या प्रॉब्लम थी। सर्विक्स पे ग्रोथ हो सकती है जिसके लिए, या सर्विक्स ठीक नहीं दिखता है तो हम फर्दर जांच करते हैं, जिसको कॉल्पोस्कोपी बोलते हैं। पॉलिप कहा था मैम ने। ऑलिप था, ठीक है। एनी ओके, अदर लगवा क्वेश्चन? ओके, थैंक यू Ma'am, there are lots of questions. First is about the treatment of PCOD. I mean, Dhruvika Sharma wants to know, like, is there any permanent treatment, or like once we are done with medicines, is that like, are we sure that it is over? हाँ, देखिए पीसीओडी को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, है ना। एक तो बहुत सी लड़कियों को पीसीओडी नहीं रहता, और कोई एक बार बोल देता है आपको पीसीओडी है तो वो जिंदगी भर पीसीओडी चलता है ना। जरूरी है कि आप समझे कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये ऐसा टाइफॉइड जॉइंटिस नहीं है कि मेडिसिन दे और खत्म हो जाए। एंड 1 in 4 गर्ल्स इन इंडिया सफर फ्रॉम इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है या है, 4 लड़कियों में से एक को होता है। ये थोड़ी सी हार्मोनल या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इसमें जो आप अधिकतर आप देखेंगे लड़कियों का वेट जल्दी बढ़ता है, क्योंकि वो जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम रहती है, तो वो जो खाती हैं वो ठीक से पचा नहीं पाती। उनकी भले फ्रेंड सेम अमाउंट का खाएंगी पर उनमें ज्यादा वेट बढ़ जाएगा। सो इट इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है तो पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते हैं। फेस पे फेशियल हेयर, एक्ने, एब्डोमिनल ओबेसिटी, इरेगुलर पीरियड्स, ये कॉमन साइंस एंड सिम्टम है। और बेसिकली इट इज समथिंग विच स्टेज विथ यू, और ये माइल्ड फॉर्म में भी होती है, सीवियर फॉर्म में भी होती है। अगर आप ओबीज हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट इज वेट लॉस फॉर इट, है ना। मैं नहीं बोलूंगी कि आप रेगुलर मेडिसिन लो, इसमें कोई ऐसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका बहुत ही एबनॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं या आपको फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं। सो आई थिंक यंग लड़कियों को बहुत एजुकेशन की जरूरत है इस बारे में, क्योंकि उनके दिमाग में एक बार बैठ जाता है कि ये पीसीओडी है एंड दे आर नॉट क्लियर व्हाट इट इज। So it is very important that you go and read the right stuff about PCOD, exactly what it is. हेलो मैम, दिस इज ध्रुविका एंड मैंने ही क्वेश्चन पूछा था पीसीओडी के लिए। हाँ जी। बट आई वांट टू नो मैम, मैं मैरिड हूँ और मुझे 5 years से ये प्रॉब्लम है। हाँ जी। आई हैव 2 kids, 16 years की मेरी डॉटर है, और बट वही है कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर है मैम। अगर पीरियड्स 3-3 महीने में भी आपको एक बार आ जाते हैं तो आप चिंता नहीं करें। अगर 3 महीने से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आपको विड्रॉल ब्लीड के लिए मेडिसिन लेने की जरूरत है, और आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए एक बार, जो आप पूरा आपको डिस्कस करके समझाएंगी, बिकॉज दिस इज अ जनरल मीट, सो आई कैन नॉट डील विद वेरी पर्सनल 1-to-1 प्रॉब्लम्स, है ना। तो आपको आप लकी हैं कि अच्छे आपके बच्चे हो गए, क्योंकि बहुत से पीसीओ अगर सीवियर होता है तो उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है, और जो ये इरेगुलर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है ये इजीली सॉल्व हो जाती है ना। तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम दे सकते हैं। और मैम देयर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन दैट आई हैव गेनिंग वेट सो मच। हाँ, तो आप जो भी आपको ट्रीट कर रहा है आप उनसे मिले। इफ यू वांट टू हैव अ पर्सनल कंसल्टेशन, आप मेरे को फोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं आफ्टर दिस मीटिंग। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Other than ma'am, one more question is there. It is about irregular menstrual cycle. So what is the question? I want to ask a question about irregular menstrual cycle. What should we do for that? नहीं, it depends how irregular it is, है ना। मैंने आपको नॉर्मल पैटर्न ये बताया ताकि आप समझे कि irregular आप किसको बोलते हैं, है ना।
जो बहुत सा स्मॉल साइकिल 21 डेज की हो सकती है, लॉन्गेस्ट साइकिल 45 डेज की हो सकती है। बहुत सी बार मिड साइकिल में जब ओव्यूलेशन होता है तब भी स्पॉटिंग हो सकती है। और बहुत सी बार लेडीज क्या करती है, पूजा हुई तो कोई दवा ले लेंगी पीरियड लेट करने की, या हैवी होती है तो फिर वो थोड़े दिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेके बंद कर देती हैं, उससे और ज्यादा इरेगुलरिटीज बढ़ती जाती हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी एग्जैक्ट 30 डेज पे पीरियड आए। कभी कभी एक दो साइकिल बीच में हो सकती है जब आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ, पीरियड आगे पीछे हो जाए, पर यूजुअली बॉडी अपना खुद का क्लॉक सेट कर लेती है। तो अगर पीरियड इरेगुलर से आपका क्या मतलब है वो कोई मुझे एक्सप्लेन करे, तो हर लेडी के लिए इरेगुलर मीनिंग अलग रहता है। ठीक है। So, Olaika, if you are comfortable, I mean, if you want to know more or you are happy with the answer. मैम हेलो मैम, हाँ जी। ये हीमोग्लोबिन की जो कमी आती है गर्ल्स में, तो उसको fix करने के लिए पालक, बोले चुकंदर, आई मीन क्या क्या डाइट होना चाहिए? क्योंकि बाल भी काफी गिरते हैं मैम। करते हैं, बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं उससे, है ना। तो जैसे मैंने कहा, गुड़ इज वेरी गुड, है ना। गुड़ अच्छा है, पिंड खजूर अच्छा है, पालक आप लोहे की कढ़ाई में बनाए वो अच्छा है, चुकंदर, गाजर, अगर नॉन वेज खाते तो रेड मीट, ये सारी चीजें डाइट में अच्छे हैं। और बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग से भी हर मिनरल्स विटामिन मरने लग जाते हैं, तो रॉ चीजें ज्यादा खाएं, कच्ची सब्जियां, ये सारी। और अगर कोई ज्यादा एनीमिक है तो आयरन सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि लड़कियों को ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है और वो खाना बहुत सी बार ठीक से नहीं खा पाती है, तो आयरन टैबलेट्स ले सकती है, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। मैम, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, मैम, ये जो एक एज के बाद लेडीज जनरली सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम या विटामिन या जो भी, सो मैम कंटिन्यूअस बेसिस पे लेना चाहिए है या वी शुड टेक अ ब्रेक, और इफ इट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर देन टू? देखो, आजकल ये सप्लीमेंट्स लेने का बहुत ज्यादा फैशन बढ़ गया है ना। जी और मैम। अभी तो जिंक तो इतना ज्यादा लिया है लोगों ने कोविड टाइम में कि शॉप्स में से जिंक ही खत्म हो गए सारे टैबलेट्स, है ना। तो सप्लीमेंट्स का एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर अगेन आई एम्फसाइज अ लॉट ऑन डाइट, है ना, क्योंकि अपन आजकल प्रॉपर कुकिंग करना भूल गए हैं। अगर आपके यहाँ प्रॉपर कुकिंग होती है, आप प्रॉपर कंप्लीट डाइट लेते हैं, तो इतने सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी डाइट प्रॉपर नहीं होती। आजकल सब्जियां भी प्रॉपर ढंग से उगाई नहीं जाती, उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड रहते हैं, या उनको हार्मोन्स दे दे के जल्दी फास्ट ग्रो कर दिया जाता है। तो अपने को पता नहीं कि अपन क्या खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। इसलिए सप्लीमेंट्स का रोल आता है मेनली बी कॉम्प्लेक्स अगर आप ले लें, है ना, कुछ टाइम आफ्टर 50, यस, थोड़ा सा अपने में डाइट अपन कम ले पाते, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, वेट गेन ज्यादा होता है, तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि हर लेडी को सप्लीमेंट्स लेते रहना पड़े। एनी अदर क्वेश्चन? One question in chat box is about heart attack in women. Like, is like people consider it that there is a negligible amount of heart issues in women. Is that true? इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, मीनोपॉज के पहले आदमियों में हार्ट अटैक का रेट ज्यादा रहता है ना, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रहता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव रहता है, वो अपने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पर मीनोपॉज के बाद अपने में वो हार्मोन कम हो जाता है, तो मीनोपॉज के बाद लेडीज में भी हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इंडिया में कार्डियक डिसीजेस बहुत कॉमन है। सो आपके हैप्पी हार्ट के लिए अगेन रेगुलर एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर हो तो उसको आप कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। सो ये चीज़ें हैं, बट येस, आफ्टर 50 द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इंक्रीज, इट बिकम्स इक्वल टू द मैन, बट उसके पहले आपको प्रोटेक्शन रहता है बिकॉज ऑफ योर हार्मोन्स। मैम, एक्सरसाइजेस मतलब बहुत ज्यादा अगर आप हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग वगैरह, तो उससे क्या पीरियड्स मतलब साइकिल शॉर्ट हो सकती है फॉर अ टाइम बीइंग?
यस, एक्सरसाइज का बहुत इफेक्ट रहता है, एक्सरसाइज का बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे स्टडीज ने बताया, जो एथलीट्स रहते हैं, मैराथन रनर्स रहती हैं, जो घंटों भागती हैं, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं बहुत टाइम में। तो अगर Excuse me, ma'am, someone is unmute because of which disturbance is there. Yes, I'm not sure who it is. check on the participants and then It's okay now. Yes. तो अगर कोई बहुत ज्यादा, जैसे मैराथन रनर्स की जो स्टडीज हैं, जो घंटों दौड़ती हैं, जिनका वेट लॉस एकदम फास्ट होता है, तो उनमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं। सो दिस इज द बायोलॉजिकल वे। तो बहुत हैवी एक्सरसाइजेज या सडन वेट लॉस या वेट गेन, उस सबसे आपके पीरियड्स अफेक्ट होते हैं। सॉरी, जस्ट 1 minute, दिस आई नीड टू Yeah, ma'am, no issues. Ma'am, there is one more question. Like, what kind of weightlifting exercise you recommend for housewives? हाउसवाइफ्स के लिए आप घर में ही बोरियां बना ले अनाज की जो आप उठा सकें, या छोटे छोटे डम्बेल्स आते हैं, आप वो घर पे लाके वो रख लें, या फिर जब आप वॉक करते हैं तो जो ग्रेविटी से लगता है, दैट इज ऑल्सो गुड। सो फिर जो लेडीज को डांसिंग का शौक है, डांसिंग एक्सरसाइज फॉर योर और लिम्ब के लिए वेट। आपकी बॉडी आप लिफ्ट कर सके, मे बी 5 kg, छोटे छोटे ग्रेन के बैग्स ही बना ले, वही लिफ्ट करें। आप जिम जाके ही वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप घर पे भी आपका आपके हिसाब से चीजें जमा सकते हैं। हर लेडी की अपनी कैपेसिटी रहती है, हर लेडी की अपनी एक्सरसाइजिंग, और वो अपन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और मैं तो बोलती हूँ 50 के बाद ज्यादा जरूरी रहता है कि अपन रेगुलर एक्सरसाइज करें। सारी प्रॉब्लम्स उस एज में आना चालू हो जाती है। लेडीज को मैं बोलती हूँ, बहुत से गांव के जाती क्या वॉक पे, तो बोले हमारे यहाँ तो बाहर ही नहीं निकलते, तो घर में आ दीदी पत्ता गोभी तो वो लगा अनुपमा रामदेव जी का ही होगा, सबके घर पे चलता है, वही करो टीवी पर। सारांश के लिए अपनी जान देगी। Excuse me, everyone. Please mute yourself. There is lots of disturbance. I'm not sure who it is. Mamta Kumawat ma'am. Mamta ma'am, can you please mute yourself? Nikita ma'am, if you can mute. If you can mute. Yes, she is. It is done, no? No. Okay. That tells us ना लेडीज को कितने मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। वो वेबिनार अटेंड करते हुए भी बच्चों को मैनेज करना पड़ता है, सब करना है। सो वी हैव टू मल्टीटास्क, बट लुक आफ्टर आवर हेल्थ फर्स्ट एज वेल, नॉट फर्स्ट, एज वेल। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? I think we have. Yeah, ma'am. Thanks a lot, ma'am. You have given your precious time. One last question, I guess I got. It is about ovarian cyst, bulky uterus, and what are the precautions which we got to follow? देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है, जो मैं नहीं ऐसे आंसर कर सकती हूँ। डिपेंड है कि आपकी एज क्या है, आपका सिस्ट कैसा है, उसकी साइज क्या है, यूट्रस कितना बल्कि है, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपको बच्चे हुए नहीं हुए, ये सब मैं पूरा 15-20 मिनट हिस्ट्री लेती हूँ, उसके हिसाब से ही आंसर कर सकती हूँ मैं, है ना। इट इज नॉट अ जनरल हेल्थ एडवाइस क्वेश्चन, इट इज अ प्रॉब्लम विच यू नीड टू डिस्कस विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट। क्योंकि सिस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, एक सिंपल सिस्ट हो सकता है, एक कैंसरस सिस्ट हो सकता है। तो वो देख के ही डिटेल में एग्जामिन करके, अल्ट्रासाउंड करके उस पे मैं आंसर दे पाऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम, पर मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, बहुत सारे सिस्ट सिंपल सिस्ट होते हैं जिसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती है।
मैं बहुत से पेशेंट देखती हूँ जिनकी ओवरीज निकल चुकी होती है या सिंपल सिस्ट पे बार बार ऑपरेशन हो चुका होता है. आई डोंट नो व्हाई, बट अननेसेसरी सर्जरीज नहीं करवाएं, उससे नुकसान ज्यादा होते हैं. पर सेम टाइम जरूरी है कि आपके सिस्ट का प्रॉपर इवेलुएशन हो कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहा है. पर हर सिस्ट हार्मफुल नहीं होता है. हेलो मैम, Yes. एक जनरल क्वेश्चन अबाउट डॉक्टर्स और अबाउट योरसेल्फ. मैं ये जानना चाह रही थी, मैं अपनी डॉक्टर से भी पूछना भूल जाती हूँ कि आप लोग इतना अपने आप को कैसे फ्रेश या इतना ज्यादा आप लोग अपने आप को कैसे इतना फिट या क्या बोलना चाहिए प्लीजेंट रख पाते हैं, क्योंकि आप दिन भर पेशेंट्स को देखते हैं, शाम में भी देखते हैं, आप ऐसे इशू केसेस भी सॉल्व करती हैं जो मतलब दुख के हो या बहुत ज्यादा, उसके बावजूद भी अगर आप सुबह की शिफ्ट में देख रहे हैं तो शाम की शिफ्ट में भी आप उतने ही फ्रेश, उतने ही जॉली, उतने ही मतलब एक भगवान की तरह पेशेंट को नजर आते हैं. तो ये कैसे आप लोग बैलेंस कर पाते हैं? हमेशा तो नहीं होता है ना. आप मेरे हस्बैंड से पूछिए कि मैं कितनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बहुत सी बार. सो इट्स नॉट अच्छा, आप जान गई. बट हाँ, जैसे किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचिंग में हो, इंजीनियर हो आप या डॉक्टर हो, आपको थोड़ा सा खुद का टाइम निकालना चाहिए. अगर निकाल सकते हो, जो रेगुलर एक्सरसाइज आप करो, थोड़ा मेडिटेशन बहुत जरूरी है ताकि आप आपको शांत रख सको. और दूसरा इम्पोर्टेंट है, आप कुछ भी काम करते हो, यू शुड एंजॉय योर वर्क. तो मैं जब क्लिनिक में रहती हूँ, मेरी सारी पेशेंट्स मेरी फ्रेंड्स जैसे ही मैं ट्रीट करती हूँ. मुझे लगता है कि मैं कोई फ्रेंड से बातचीत कर रही हूँ. तो मुझे कभी भी टायरिंग नहीं लगता है. आई एंजॉय मीटिंग वीमेन, आई एंजॉय डिस्कसिंग विद देम. और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, उनसे तो हमारा पूरा 9 महीने का रिश्ता हो जाता है. फिर वो उनके बेबीज को देखते, तो उससे जब हम बेबीज देखते हैं तो वो सारी थकान दूर हो जाती है. तो बहुत अच्छा लगता है, द फीलिंग दैट वी कैन हेल्प समबडी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप पहचान गई मैम? सॉरी. माय हस्बैंड इज वान खान फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट. अच्छा, अरे अरे, ओके ओके, पहचान गई मैं. हाँ ना. ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. So it ended on a very good note. Yes, thank you. And thanks a lot, ma'am. Thanks all the attendees that you have joined the session. It was lovely interacting. And ma'am, going forward also. Yes, ma'am. No, I'm saying it was lovely interacting with everybody. As always, I enjoy talking to women. Oh, pleasure is all ours. We never get someone who would be able to devote at this level. I mean, talking to a gynecologist over this session is like everybody can't think of. We have to go and meet the doctor personally. But you have devoted your time and you have handled the queries so nicely. Usha madam is here in the group. She's a very learned lady. Knows a lot about women's health. So we enjoy, both of us enjoy working together. And especially we are promoting natural birthing. है ना. आजकल बहुत ज्यादा मेडिकलाइजेशन हो गया है प्रेगनेंसी का, तो अननेसेसरी दवाइयां नहीं, और जितना नॉर्मल बर्थिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं, उषा मैडम जो है नेचुरल बर्थिंग की, वो और हम दोनों प्रमोट करते हैं. हम एक और चीज जो है, बहुत सारी हिस्टेक्टमीज, बहुत सारे अननेसेसरी सर्जरी. सो आई डोंट थिंक ऑल दोज आर नीडेड एज मच एज दे आर डन समहाउ. तो जितना नेचुरल, जितना आप नेचर के पास रहोगे उतने हेल्दी रहोगे. To end on that note. Okay, so that's it for the day. Maybe, ma'am, we would be requesting you again for this sort of interactive session. Anytime. And so thanks to all of you once again. Thank you very much. Okay. Okay, bye. Ma'am, now you got to end the meeting. You are the host. So I have to end. And leave meeting and end meeting for all. Sorry, मेरे को ये थोड़ा सा मेरा न्यू कंप्यूटर है, तो I'll just need to maybe pause sharing. एक minute. When you click on the leave meeting, there will be option for leave for all. मेरे स्क्रीन पे मेरा पूरा बस प्रेजेंटेशन ही आ रहा है. मैम आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिए पहले. हाँ, वही मैं कोशिश. You should stop screen share and then it will be. Sorry, just a minute. That's okay, ma'am. That's okay. It happens. Yeah, my son has got this new computer which I'm not well versed with. So just 1 minute.
आपका माइक्रोफोन अनम्यूटेड था। आपका माइक्रोफोन अनम्यूटेड था। सॉरी, अनम्यूट कैसे करा आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो अनम्यूट था। एक तो पता नहीं स्टॉप। Ma'am, first you should stop the screen share. There is a pop-up on the top of your screen. You're sharing the screen, so you just stop the screen share. Sorry, this is a new computer. Everyone else can please leave the meeting. अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको? जी मैम दिख रहा है अभी स्क्रीन स्टिल स्क्रीन शेयर इज देयर मतलब नहीं बोलना नहीं। मैं भी दिख रही हूँ साथ में। जी मैम जी ओके राइट। ऐसा करो तो सुन। हेलो 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 नहीं स्टिल इट्स या कायनात यू वांट टू से समथिंग my hello yeah you are audible but the session is over now everybody has left the meeting actually I wanted to discuss some problem. if you want you can I mean I'll share ma'am's contact number and then you can have word with her. Okay, so where will you share the number? Are you added on Super and Mass group? meeting. No ma'am. Okay.